Good evening, everyone. Last time I think we have discussed up to section 1 and 2. So, in this part of the video, I will try to cover up to section 12 and 12a. So, let's get started. Just one thing, this time I have already highlighted all the relevant portions which I think is relevant to me. You may add or delete as per your wish. So let's start with section 3, 4, 5. These are the most important section of this particular act. This is not a SEBI act, this is SCR, Securities Contract Regulation 1956. So whenever you are reading, just one thing, whenever you are reading any act or a bylaw or anything, regulation, try to read it as a whole. Securities Contract Regulation Act 1956. Try to read the name of the Bear Act as a whole. Otherwise, you won't be able to remember the year. So that's for just a simple advice. Now we will start with section 3. Now the heading of section 3 states application for recognition of stock exchanges. Now it's very simple. You will make a particular application to the central government in a prescribed format with all the rules and bylaws, and if your application is made in a proper manner, the central government will grant you the recognition. That will come under section 4 and the subsequent parts. Now see here, any stock exchange which is desirous of being recognized for the purpose of this act may make an application. It's not compulsory कि आपको application देनी ही देनी है to the central government. ठीक. Now central government कहाँ लिखा है भैया, यहाँ पे आ जाओ, footnote 29. Powers are accessible by SEBI. ठीक है, कब आया ये? 13/9/1994. ठीक, simple. Central government means SEBI. It's a very general thing, but may or may not be asked. And one thing more, there are various publications in this sections 3, 4, 5, 6 and onwards. There are various publications to be made in the gazette, in the newspaper. I am just telling you, I'm not going to give the exam. It is your job to memorize, to remember, or whatever tricks you want to apply to remember that particular publications and how it is going to be made. These are very important. They may ask you a very specific question in section 4b or 4a or 4, how and when the publication would be made. Okay, so that is important. Now any stock exchange can make an application to central government, and central government means SEBI. Okay, as per the amendment of 1994. Now when you are making an application, it shall be accompanied by copy of the bylaws, ठीक है, and also a copy of the rules relating to the constitution of the stock exchange and in particular. ठीक, general constitution of the stock exchange you will provide, but in particular ये 4 चीज़ें आपको देनी होंगी. ओके, समझ गए? 2 चीज़ें देनी है. सबसे पहले आपको bylaws देने फॉर द एक्सचेंज रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक. ट्राई टू रिमेंबर इट. दे आर नॉट आस्किंग आपके सारे bylaws. They are not asking about all the bylaws of the stock exchange. There may be thousands of bylaws, but they are asking only about the control of related to contract, and also copy of rules relating to general to the constitution of the stock exchange and particular. Okay, simple. यहाँ पे जो चीज़ है उतना ही पढ़ना है आपको. ये चीज़ें आप लोग मिस करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी की थी. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे. नाउ गवर्निंग बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पावर क्या होगी? ए, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस बेयरर. ठीक, एडमिशन कैसे होगा वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर्स का, और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक, इन पर्टिकुलर ये 4 चीज़ें देनी है, बाकी 2 चीज़ें और देनी है आपको. गॉट इट? ये हो गया आपका सेक्शन 3 कंप्लीट. अब इसके ऊपर हो सकता है बहुत बड़ी कमेंट्री बहुत लोग बताएंगे. मैं उतना नहीं घुस रहा हूँ, ना ही मेरे पास उतना नॉलेज है. ठीक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ठीक, अब आपको आगे आना है सेक्शन 4. आपने सेक्शन 3 में एप्लीकेशन दे दी, अब आ गया सेक्शन 4. भाई आपने एप्लीकेशन दी, या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी, दोनों में से एक ही चीज़ होगी. ऐसा तो नहीं है वो कि भाई गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दी एंड दे कीप इट पेंडिंग. ऐसा तो नहीं होगा. सेबी है भाई, अच्छा खासे वो करेगा. अब आपने जब एप्लीकेशन दी तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? इंक्वायरी.
ठीक, जो आपने एप्लीकेशन दी, द एप्लीकेशन विच यू हैव मेड, उसके ऊपर वो इंक्वायरी करेगा कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज ठीक है भी कि नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है भी कि नहीं, गवर्निंग बॉडी क्या कर रही है, ठीक। उसके बाद वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, एड में भी नेसेसरी, वो मांग सकता है। द रूल्स एंड द बायलॉज ऑफ द अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक। कंडीशन क्या आएगी वो भी नीचे आएगा। स्टॉक एक्सचेंज विलिंग टू कंप्लाई एनी अदर कंडीशन, ये कंडीशन हमेशा जनरल रहती है, ठीक। वेन एवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग एनी काइंड ऑफ परमिशन दे विल गिव दिस पर्टिकुलर क्लॉज, ठीक। थर्ड, अगर वो आपको परमिशन देगा, ग्रांट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट, यही दो कंडीशंस हैं जो कि हर जगह रिपीट होंगी, इसको याद कर लो अच्छे से। इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक। इट मे ग्रांट रिकग्निशन, ये तीन कंडीशन पूरी कर दो। अदर देन जो सेक्शन 3 में जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके बाद ये सब होगा, उसके बाद आपको कंडीशन भाई मिल जाएगी, ठीक। द कंडीशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब, यहाँ पे लिखा है ना, वो कुछ कंडीशन आपको दे सकता है, वो कंडीशन क्या होंगी, वो इन चारों से रिलेटेड होंगी, ठीक। द कंडीशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 ये क्लॉज ए, ठीक। फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू द स्टॉक एक्सचेंज मे इंक्लूड अमंग्स अदर मैटर्स, तो इट इज सेइंग भाई ये नॉन एग्जॉस्टिव है, वो कुछ भी डाल सकता है कंडीशन, बट इन चार में से रिलेटेड तो डालेगा ही। द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्वालिफिकेशन होगी, मैनर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जो बायलॉज से रिलेटेड अभी सेक्शन 3 में था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेबी, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय द सीएस, ठीक। इन चार से वो कंडीशन डाल सकता है। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है इफ़ आई हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन आई विल फ्रेम कि सेक्शन 2 के अंदर कितने नंबर ऑफ कंडीशन डालेगा, मैं बोलूँगा आपको मान लो 3 और 4 लिख दूँ, बट यहाँ पे जब दिया है ये चीज़ तो इट इज़ गिविंग अ स्कोप टू द एग्जामिनर कि वो एंड अदर मैटर्स, इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव। ये जो कंडीशन दी हैं दैट डजेंट मीन कि इन्हीं कंडीशन पे वो कंडीशन लगाएगा, देयर मे बी अदर कंडीशंस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी मे इम्पोज सम अदर कंडीशन व्हेन इट इज़ ग्रांटिंग यू द रिकॉग्निशंस, ठीक। अब आ गया सेक्शन आपका सब सेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन अंडर शैल बी, इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन, शैल बी पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया, अच्छे से याद कर लो, एंड ऑल्सो इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द स्टेट। ऑफिशियल गजट ऑफ द स्टेट कौन सा वाला, किस स्टेट का, इन द प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का है, और जैसे ही ये पब्लिकेशन होगा आपका इफेक्ट में आ जाएगा, समझ गए। अब आ गया सेक्शन 4, सब सेक्शन 4, सॉरी व्हेन आई एम टेलिंग यू समझ जाना थोड़ा। अब इसमें ये बोल रहा है कि भैया अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है फॉर वॉट एवर रीजन्स मे बी, तो प्रिंसिपल ऑफ कौन सा जस्टिस फॉलो होगा और कौन से आर्टिकल में लिखा है ये ज़रा मुझे बता देना भाई कमेंट में अगर मन करे तो, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 4। अब आ गया कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन 4A एंड 4B, ठीक। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है। इसमें लिखा है, इसमें 4A सिंपल ये बोल रहा है कि जिसने एप्लीकेशन दी थी कॉर्पोरेटाइजेशन और म्यूचुअलाइजेशन की, जो एक्सेप्ट हो गई उस दिन से अपॉइंटेड डेट से उनका माना जाएगा कि कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया है, सिंपल इसी डेट। ये सेक्शन 4A सिंपल इतना ही बोल रहा है, ठीक। 4B क्या बोल रहा है कि प्रोसीजर क्या होगा, ठीक, प्रोसीजर। 4A का जो प्रोसीजर है वो यहाँ आएगा, ठीक। सबमिट अ स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड म्यूचुअलाइजेशन फॉर इट्स अप्रूवल, ठीक, अप्रूवल के लिए आप दोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अप्रूवल के लिए आपने स्कीम दे दी, अब स्कीम जो होगी सबसेक्शन 1 से भी फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है एंड इट मे रिक्वायर एंड इट इज सेटिस्फाइड दैट इट वुड बी इन द इंटरेस्ट अप्रूव द स्कीम, ठीक। जो मैंने बोला था इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट, फिर से आ गया यहाँ पे,
ठीक, मैंने बोला था वही 2 चीज़ें आपको याद रखें, यू नीड टू रिमेंबर ओनली दीज 2 थिंग्स। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे आई है। अब ये जो पार्ट है, पॉइंट नंबर 3, नो स्कीम अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी अप्रूव्ड, ठीक, इफ द इशू ऑफ शेयर फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन और प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स इन ल्यू ऑफ मेंबरशिप कार्ड। आप देखो, एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं मेंबर। ठीक, ट्रेडर जो होंगे वो मेंबर नहीं हो सकते, मेंबर जो होंगे ट्रेडर नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब ये बोल रहा है आपने जो शेयर्स इशू किए ट्रेडिंग राइट्स के रिस्पेक्ट में, आपने जब मेंबरशिप दी, इट कैन नॉट बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू अ मेंबर हैव बीन आउट ऑफ रिजर्व्स और एसेट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी आप शेयर्स वगैरह, जो भी आप डिविडेंड वगैरह, जो भी आप अप्रोप्रिएट लॉफुल कंसिडरेशन में दे रहे हो, दैट कैन नॉट बी एंड दैट शैल नॉट बी मेड पार्ट ऑफ रिजर्व्स और एसेट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल उतना ही बोल रहे हैं। ठीक, आप किसी ट्रेडिंग मेंबर ने कहा कि मुझे मेंबर बनना है गवर्निंग बॉडी में, किसी ने बोला मैं अपना ट्रेडिंग से खुश हूँ, वहीं से इनकम आ रही, तो वो सेग्रीगेशन होगा यहाँ पे। ठीक, अब सबसेक्शन 4, भाई स्कीम तो आपने एक्सेप्ट कर ली, उसको पब्लिकेशन कहाँ करना है? देखिए, शैल बी पब्लिश्ड इमीडिएटली बाई, कौन करेगा? बाई, टर्म यहाँ पे है बाई। ठीक, सेबी करेगा ऑफिशियल गैजेट में, और रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज कहाँ करेगा? 2 डेली न्यूज़पेपर में। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और उसके बाद जैसे ही पब्लिकेशन होगा, सारा राइट्स, लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, अब सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? अगर आपने रिजेक्ट किया तो उसको भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करो। ठीक, और वही सेम चीज़, जितने लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करो। दैट इज़ अ वेरी कार्डिनल प्रिंसिपल। आप ऐसे नहीं कि किसी को भी रिजेक्ट कर रहे हो और उनको हियरिंग का राइट ना दो। ओके, सो ये हो गया। अब ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग खुद पढ़ेंगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं लिखा है आपका। अगर मेंबरशिप और ट्रेडिंग राइट्स जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, वही यहाँ चीज़ है। ब्रोकर्स के क्या राइट होंगे, गवर्निंग बॉडी के क्या राइट्स होंगे, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें। एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, शैल ईदर बाय फ्रेश, इसमें ये सिंपल ये बोल रहा है कि पब्लिक के पास उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का कितना पार्ट रहेगा, एटलीस्ट 51% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक, सिंपल, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, सॉरी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर। पब्लिकेशन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक, यहाँ से ऑर्डर में, वहाँ से 12 मंथ्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसने क्या लिखा है, 12th मंथ में अगर नहीं कर पाते हो तो उस केस में 12 + 12 ये आ गया। ठीक, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी, मार्क कर लीजिए भाई। सबसेक्शन 8, ठीक, मैक्सिमम टाइम मिलेगा 12 मंथ्स, बट उसको एक्सटेंशन देके +12 मंथ्स और हो सकता है। ठीक, ये हो गया आपका। अब विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन कैसे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, ठीक, उसको लगता है विड्रॉ करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सेम चीज़ जिसमें उसने आपको ट्रेडिंग राइट दिया था, जिसमें आपने उस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज किया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज, उसी के बेसिस पे ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करेगा, एक नोटिस सर्व करेगा ऑन द गवर्निंग बॉडी। रिटर्न नोटिस होनी चाहिए कंसिडरिंग द विड्रॉल। भैया नोटिस जब दोगे तो क्या कहोगे, और उसके बाद उसको हियर करेगा, यहाँ रहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बाद विड्रॉ कर देगा। सिंपल। ठीक, उसके बाद ये सारी कंडीशन है, खुद पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी इसलिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक, और अगर वो पहले से डीम्यूचुअलाइज या कॉर्पोरेटाइज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं होगी, वेरी सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं, मैं सॉरी इफ आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर लाइन बाय लाइन आई कैन नॉट स्टडी, आई कैन नॉट टीच। ओके, माई पर्पज इज टू गिव यू द फेयर आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर act or a law. If you have any problem you can just comment, I will try to answer. ठीक, that I will try, I am not promising but I'll definitely try. Now call for periodical returns, ठीक, simple, it is a one of the important section जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी कि 5 साल के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं। ठीक, वो क्या क्या आपसे मांग सकता है, मान लीजिए कोई इंक्वायरी हो रही, किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि जाओ उस पर्टिकुलर
स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स को स्टडी करो और उस पर मुझे इंक्वायरी की रिपोर्ट दो। सेबी अपने किसी पर्टिकुलर CGM GM जो भी होंगे उन ऑफिसर को ऑथराइज करेगा। ठीक, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। जो चीज़ हाईलाइटेड है यहाँ पे सिर्फ उतना ही पढ़ लेना, एक बार पूरी स्टडी कर लेना। जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, जो ये लोग हैं सपोर्ट हो जाएंगे। भाई स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग होंगे ना, ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो दे विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेबी। ठीक, वो चीज़ यहाँ लिखी है। अगर वो सपोर्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो भाई आप समझ सकते हैं क्या पेनल्टी वगैरह पड़ेगी उन लोगों के ऊपर। ठीक, एनुअल रिपोर्ट भी आपको देनी है, बट यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि एनुअल रिपोर्ट कब देनी है, कितने टाइम में देनी है, क्या लिखा है। बट ये लिखा है शैल कंटेन सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई ये मुझे आज देखिए, दैट इज़ वेरी, यहाँ पे आपने एक्ट बना दिया, आई गेट इट कि हर चीज़ यू कैन नॉट कवर। ओके, एक्ट का पर्पज़ ही एवरीथिंग यू कैन नॉट कवर। एक्ट बनाया, उसके बाद रूल्स बनाए। रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आ गया रेगुलेशंस के बाद आपके बाई लॉज वगैरह जो भी हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सारे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ठीक, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब कि भाई लेजिस्लेचर ये सारे काम नहीं कर सकता, इट कैन ओनली प्रोवाइड यू द स्केलेटन। ठीक, अगर स्केलेटन बनाने के बाद उसके रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज, सर्कुलर्स वगैरह वो सब पर्टिकुलर आपका स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या वॉट जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटी है दैट विल मेक सिंपल। ठीक, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बड़े आसानी से बता दी आपको, इसका पूरा एक डिस्कशन है आपका सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो सारी चीज़ें आई डोंट थिंक सो अभी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 7A, पावर ऑफ द रिकॉग्नाइज टू मेक रूल रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। ठीक, आपने मेंबर को वोटिंग राइट्स दिए थे, उस केस में उसके बाद मान लो 1,000 करोड़ का कैपिटल है, उसको भी एक वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि भैया 100 करोड़ पे हम आपको एक वोट देंगे, या 10 करोड़ पे हम आपको एक करोड़ वोट देंगे। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ठीक है, सेक्शन 7A में। नाउ सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड और टू मेक रूल्स। ठीक, या तो स्टॉक एक्सचेंज बना दो भाई, मैं तुमको बोल रहा हूँ, या तो मैं खुद बना दूँगा। सिंपल। ये जो लाइन है ना, ये जो इसको आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि इसको क्या बोलते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको पूरा एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा अंदर सेक्शन सब सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या लिखा है, वेयर आफ्टर कंसल्टेशन, ठीक, with any particular stock exchange, sorry, in generally with the stock exchange or in particular, ठीक, is of the opinion in writing statement of reasons, make any rules or amend any rules, or मेरे respect to all the matter is specified in subsection 2 of section 3। ठीक, ये जो रूल्स जहाँ पे दिए थे, जहाँ पे आपको जब आप ग्रांट ऑफ रिकग्निशन ऊपर जा रहे थे उस टाइम पे उसी मैटर्स में बना सकता है। ऐसा नहीं कि हर मैटर में बनाएगा। यहाँ पे जो लिखा है इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव, किस मैटर्स में बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्राई टू डेवलप अ हैबिट टू अंडरस्टैंड अ एक्ट कि वो लैंग्वेज से क्या बोलना चाह रहा है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट्स, बट आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ थरो रीडिंग, आफ्टर going through several acts you will get it, I know it। so ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ये यहाँ पे देखो सिंपल मैंने क्या लिखा जिस टाइम मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा है भैया सिंपल, इस 4 वर्ड से यू कैन अंडरस्टैंड। हिंदी अगर नहीं आती इस लिखा है खुद से कर देगा, मतलब इट्स अ सिंपल, इफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डजंट डू इट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू इट। ये आ गया यहाँ पे पब्लिकेशन। ठीक, पब्लिकेशन आ गया, यहाँ पे कहाँ पब्लिश होगा वो लिख दिया। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन 8 आई थिंक, हाँ 8। फिर 8A में आ गया क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का पर्पस सिर्फ ये है, जैसे बोलते हैं ना NSE में आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स बहुत होती है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स जो इंडिया में होती है। ठीक,
नाउ व्हेन एनी ट्रेडिंग हैपनिंग, आपने खरीदा आपने बेचा, आपने खरीदा आपने बेचा, ऐसे मान लो 10 करोड़ लोग कर रहे हैं, कितनी बार करेंगे यू डोंट नो. सो फॉर दैट क्लियरिंग कि कितने में किसने खरीदा, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसका पूरा आपका लॉग्स वगैरह बनाना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन. स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट डू. ठीक, उसके पास अपने काम भी हैं, तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने अंडर बनाएगा. ठीक, एनएससी के साथ कोई होगा. ठीक, कौन होगा उसका नाम बताइए प्लीज़. तो वो ये सारी चीज़ें देखेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, डिलीवरी कैसे हो रही है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. ठीक, इट्स एल्गोरिदम बेस, ऐसा नहीं कि वो जाके पैसा मांगेगा. तो दैट इज़ द रोल ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन. ठीक, उसके बाद आ गया पावर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज. ठीक, एनी स्टॉक एक्सचेंज में subject to the previous approval of the Securities and Exchange Board of India make bylaws for regulation and control of contracts. ठीक, ये तो आपने दे दिया कि भैया दिस इज अ स्केलेटन. ठीक, दिस इज अ स्केलेटन, ये आपने बना दिया, बड़ा गंदा सा बना, सॉरी. बट इसके बाद इन्होंने क्या देखिए चालाकी से क्या लिखा, इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच बायलॉज में प्रोवाइड फॉर. देख लीजिए, ए से लेके ए से शुरू हो रहा है और डब्ल्यू पे जाके ओवर हो रहा है. ठीक, तो इसको यू नीड नॉट टू मेमोराइज ऑल दिस, आपको सिंपल बस पढ़ लेना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मार्केट्स कब खुलेगा, आई थिंक 9 बजे खुलता है सुबह, 9:15 से ट्रेडिंग होती है, 3:30 पे बंद हो जाता है. कमोडिटीज़ मार्केट का अलग टाइमिंग है आई गेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ देख लेना, इससे क्वेश्चन आना इज मतलब बहुत कम चांसेस है, बट एक बार आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है. बायलॉज मेड अंडर दिस सेक्शन में स्पेसिफाई द कॉन्ट्रोवर्शियल में कि भाई सेक्शन 14 के अंदर एक होता है ना, एक पर्टिकुलर इतनी जगह में ट्रेडिंग कर सकते हो आप, इस एरिया में किस किस चीज़ की ट्रेडिंग होगी. जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शंस जो था वो इलीगल था. ठीक, उसकी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, बट उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि आप करिए. इट्स अ हेजिंग टूल जिसको आपको यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो. और अगर बायलॉज किसी ने आपका कॉन्ट्रीवीन किया तो उस केस में क्या क्या होगा ये लिखा है यहाँ पे. ठीक, इस केस में यहाँ पे सेबी ने एक चीज़ और है, एक छोटा सा है कि भैया प्रीवियस पब्लिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट, उसको डिस्पेंस कर सकता है अगर सेबी चाहे तो. ओके, पावर ऑफ द, देखिए यहाँ पे किसकी पावर थी, पावर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज. ठीक, यहाँ पे किसकी पावर है, पावर ऑफ द सेबी टू मेक या तो बनाएगा या तो अमेंड करेगा बायलॉज. ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है. अगर वो कंसल्टेशन से कर रहा है तो गवर्निंग बॉडी को भाई चिट्ठी लिख दो, अच्छे से पूछ लो वी आर डूइंग इट बाय लेटर, उसके बाद वो कर दे. चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकता है. ठीक, उसके पास पूरी पावर है, वो चीज़ यहाँ डिफाइन हुई है. सेक्शन 11 इज इम्पॉर्टेंट. ठीक, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मैं इसमें इंटेंशनली नहीं घुस रहा हूँ, जितना मैंने हाईलाइट किया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. पढ़ लीजिएगा एक बार. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इट शुड बी सुपरसीडेड, देन आप रिटर्न नोटिस दो, रीजन दो, गिविंग अपॉर्चुनिटी दो, और उसके बाद ये सब कर दो. और उसके बाद एक कोई पर्सन अपॉइंट कर दो जो कि सारे काम करेगा स्टॉक एक्सचेंज के. क्योंकि पहले तो वहाँ पे एमडी कर रहा था ना, अब कौन करेगा. आई थिंक एक एनएससी का एक कुछ इशू आया था, ये नित्या राम कृष्णन, आई थिंक नित्या राम कृष्णन मैडम, तो उस टाइम पे भी ऐसे काम हो सकते हैं. ठीक है, आई डोंट नो कि उस टाइम पे हुआ था नहीं हुआ था, बट हो सकते हैं. उसके बाद उसके पास भाई जो भी पर्सन है उसके पास मतलब अच्छी खासी पावर आ जाएंगी, जो भी उसको पर्टिकुलर सेबी ने दी है या फिर एज पर एक्ट उसके पास सारी पावर आ जाएगी. ठीक, पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. ठीक, इफ़, ये मैं पूरा पढ़ूंगा, इफ़ इन द ओपिनियन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ठीक, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी हैज़ अरिजन. इमरजेंसी क्या है वी डोंट नो. फॉर द पर्पज़ ऑफ मीटिंग. ठीक, उस पर्पज़ ऑफ इमरजेंसी के पर्पज़ को मीट करने के लिए एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगा
direct a recognized stock exchange to suspend such of its business for such period not exceeding 7 days. सच ऑफ इट बिजनेस फॉर सच पीरियड, ठीक, हो सकता है, सॉरी, हो सकता है वो 10 बिजनेस कर रहा हो, ठीक, 10 चीज़ों में, उससे बोलेगा ये 8 बिजनेस बंद करो, बट ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक। अगर 7 दिन से ज़्यादा कर रहा है उस केस में, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फर्स्ट पीरियड, मतलब 7 days, नो नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन shall be issued unless the governing body, जो कि है, has given an opportunity of being heard in the matter, ठीक। अब अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, जस्ट एकेडमिक क्यूरियोसिटी, अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उसने दी और सेबी ने कहा कि नहीं, आप लोग जो बोल रहे हैं मुझे नहीं मंजूर है, या फिर विम्सिकल वे में बोला कि नहीं, आपने जो बोला नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, इन दैट केस वेदर गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन अप्रोच द रेलिवेंट अथॉरिटी और द कोर्ट्स कि बिकॉज उनका आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ बीन वायलेटेड, ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई, कमेंट में बताइए। पावर टू इशू डायरेक्शन, सेम वही चीज़ जो ऊपर चल रही है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक। तो आई ट्राई टू कंप्लीट, मतलब थोड़ा टाइम हो गया आई थिंक, बट जितना हो पाया आई हैव ट्राई टू कंप्लीट। इसके बाद जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस वगैरह है, थोड़ा टेक्निकल है, इससे क्वेश्चंस आई थिंक 21 या 22 में आया था एक बार, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। और इतना पढ़िए, कुछ डाउट है प्लीज़ आस्क मी, अगर कुछ लगता है कि किस पर्टिकुलर एक्ट को पहले कवर करूँ मैं, आई विल ट्राई टू कंप्लीट पहले ये 3 एक्ट्स जो कि हैं डिपॉजिटरीज, और इसके बाद सेबी में ज़्यादा कुछ नहीं है, पनिशमेंट्स ज़्यादा हैं जो कि आप लोगों को खुद से कवर करनी है। डिपॉजिटरी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी सेम पनिशमेंट्स हैं, जो तीनों एक्ट्स में सेम पनिशमेंट्स हैं, एक बार एक को कवर कर लो, तीनों अपने आप कवर हो जाएंगी, ठीक। तो इतना था मेरे एंड पे, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू।